देख, at first scene second, a camp. Alarm within. Alarm within means the blowing of trumpet on the stage. Enter king. There is entry of King Duncan, his son Malcolm, his younger son Donalbain, Lennox, who is a nobleman, attendants, and King Duncan is going to meet a bleeding captain who is referred as a sergeant also. King, what bloody man is that? King is asking, who is that bleeding man? Who is that person who is bleeding? He can report as seen by his flight of the revolt, the newest state. This bleeding man, this is the speculation or anticipation of king कि this person is bleeding. So this bleeding person can report, can tell. This bleeding person can tell as seen, as appears by his plight. Plight means pitiable condition. This sergeant is in pitiable condition because many wounds on his body. So because of many wounds, he can tell what is going on in the battlefield. Newest state मतलब latest position, latest situation, latest news of the battlefield. Because of his wounds, I can imagine, king can imagine that this person has the latest news of the battlefield. What is really going on in the battlefield? Then Malcolm answers the king, this is the sergeant who, like a good and hardy soldier, fought against my captivity. This is the sergeant. Sir, father, this is the officer who, like a good and hardy soldier, who, like a good and tough soldier, who behaved in the battlefield as a good and tough soldier and he fought against my captivity. Enemy soldiers was going to make me arrest, make me prisoner. That time, that soldier, this soldier helped me and saved me from the clutches of enemy. Hail. Now, welcome, addressing the bleeding soldier. He is saying, welcome, brave friend. He is addressing the sergeant as a brave friend. Say to the king, tell the king the knowledge of the broil. Tell the king, inform everything about the broil. Broil means turmoil. Turmoil, chaos, fighting, confusion. What is going on in the battlefield? The broil you write down like a fighting. Yeah, turmoil in the fighting. As thou didst leave it, as you left the battlefield, that time, what was the situation? What was going on in the battle? What was the latest news of the battle? Inform the king, tell the king. Then captain answered, doubtful it stood. It means broil. Broil means fighting. Fighting was doubtful. If fighting was doubtful, matlab, there was no clear clue who will win the fight. Both were fighting well and choke their art. आर्ट का मीन है एफर्ट्स, choke का मतलब hamper, HAMPER, and both sides armies were hampering each other's efforts. मीन्स यहाँ से कौन लड़ रहा है? मैकबेथ. मैकबेथ पूरा ट्राई कर रहा है सामने वाले को डिफीट कर दे. यहाँ से कौन लड़ रहा है? मैकडॉनवार्ड. मैकडॉनवार्ड पूरा ट्राई कर रहा है कि वो मैकबेथ को डिफीट कर दे. बोथ डूइंग वेल. दोनों लोग इतना वेल डू कर रहे हैं कि एक दूसरे के एफर्ट्स को हैम्पर कर रहे हैं. यहाँ से मैंने एफर्ट लगाया, यहाँ से उसने एफर्ट लगाया, दोनों एक दूसरे के एफर्ट्स को हैम्पर कर रहे हैं. हैम्पर का मीनिंग मतलब स्टॉप कर देना, सामने वाले के एफर्ट्स को फुलफिल होने ही नहीं दे रहे हैं. तो मैकडॉनवर्ड इज नॉट रेडी टू बी डिफीटेड, मैकबेथ इज नॉट रेडी टू बी डिफीटेड. दैट वाज द सिचुएशन व्हेन आई लेफ्ट द बैटल.
द मर्सीलेस मैकडॉनवर्ड, मैकडॉनवर्ड के बाद देखिए लॉन्ग डैश है, तो मर्सीलेस मैकडॉनवर्ड से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखिए क्या है। वर्दी टू बी रेबल फॉर टू दैट द मल्टीप्लाइंग ब्लेनरीज ऑफ नेचर डू स्वार्म अपॉन हिम। वर्ड टू वर्ड ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो मैकडॉनवर्ड इज कॉल्ड एज मर्सीलेस, मतलब he is not showing any pity to kill anybody, merciless. He is worthy, he is able to be called as rebel. Rebel means opponent, rebel means enemy. If somebody is your enemy and he is weak, so you will say he is not a capable enemy of mine, he should be equal to me. And this MacDonald is totally worthy to be a rebel of Macbeth, totally, equally. He is as brave as Macbeth. He is as not a brave, matlab he is very well in fighting. He is answering every attack very in a very well way. So he is called worthy. This is a positive connotation. For to that, अगर हम उसको वर्दी कह रहे हैं, वर्दी रेबल कह रहे हैं, तो फॉर टू डेट इस चीज के लिए क्या चीज एड ऑन करनी होगी? मल्टीप्लाइंग प्लेनरीज ऑफ नेचर। जो मैकडॉन वर्ड है ना, मल्टीप्लाइंग का मतलब इंक्रीजिंग, प्लेनरीज का मीनिंग है विकेट थॉट्स। लिख लीजिए, विकेट थॉट्स या इम्पल्सेस ऑफ नेचर। ऑफ नेचर मतलब नेचुरल, मतलब मैकडॉन वर्ड के अंदर बाई बर्थ नेचुरल, बाई बर्थ या नेचुरल प्लेनरीज है जो मल्टीप्लाई होती जा रही है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैकडॉन वर्ड। मैकडॉन वर्ड बाई बर्थ, बाई नेचर कैसा है? इविल थॉट से भरा हुआ है, इविल इम्पल्सेस से भरा हुआ है कि अब ये भी खत्म कर देना, ये भी खत्म कर देना, इसको भी कॉन्फिस्केट करना है, इसको भी डिफीट कर देना है, लाइक दिस। गुड और बैड का कोई लेना देना नहीं है, ओनली इविल थॉट से वो भरा हुआ है, और वो भी मल्टीप्लाइंग वे में उसके इविल थॉट्स जो है ना इंक्रीज होते जा रहे हैं। इस टाइप का कैरेक्टर है उसका। तो इस टाइप का पर्सन एक टोटली वर्दी रेबल है इन दिस फाइट। डू स्वार्म अपॉन हिम। स्वार्म का मीन होता है क्राउड या ओवरलैप। दीज टाइप ऑफ क्वालिटीज ओवरलैप अपॉन हिम, इस टाइप की क्वालिटीज उसके ऊपर ओवरलैप है, इसके ऊपर मैकडॉन वार्ड। तो मैकडॉन वार्ड का कैरेक्टर इज लाइक दिस। अब जो लॉन्ग डैश था, फिर से एक लॉन्ग डैश आया, तो आप इसको एक ब्रैकेट की तरह लीजिए कि मैकडॉन वार्ड की इंफॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ खत्म हुई, क्लियर। अब मैकडॉन वार्ड फ्रॉम द वेस्टर्न आइल्स ऑफ कर्न्स एंड गैलो ग्लासेस इज सप्लाइड। मैकडॉन वार्ड जो है वेस्टर्न आइल्स, वेस्टर्न आइल्स मतलब वेस्टर्न आइलैंड, ये हेवराइट्स की बात हो रही है। HEBRIDES लिख लीजिए, हेवराइट्स। हेवराइट्स एरिया के या फिर वेस्टर्न आइलैंड के जो कर्न्स हैं और जो गैलो ग्लासेस हैं, कर्न्स का मतलब होता है फुट सोल्जर्स, लाइट आर्म्ड फुट सोल्जर्स, और गैलो ग्लासेस का मीनिंग होता है हॉर्समैन, घुड़सवार। तो मैकडॉन वार्ड को सपोर्ट मिला हुआ है कहां से? वेस्टर्न आइलैंड से। वेस्टर्न आइलैंड के जो फुट सोल्जर्स हैं और जो हॉर्स सोल्जर्स हैं इस सप्लाई, वो उनको सप्लाइड कर दिए गए हैं। जो अभी ये ब्लीडिंग सोल्जर ये बता रहा है कि व्हेन आई लेफ्ट द battlefield at time, I got the news that McDonald is supplied with the kerns and gallo glasses from the Western Isles. And fortune, and that time, fortune, goddess of fortune, on his damned quarrel smiling, fortune स्माइल कर रही थी किसकी ओर? मैकडॉनवर्ड की ओर। डैम्ड क्वेरल, डैम्ड क्वेरल का मीनिंग लिख लीजिए, इविल, इविल कॉज, इविल कॉज। मैकडॉनवर्ड के इविल कॉज पर वो स्माइल कर रही थी। अब जब मैंने कहा कि गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून इज स्माइलिंग,
टू सी द इविल कॉज ऑफ मैकडॉनवर्ड। तो अगर फॉर्च्यून आप पर स्माइल कर रही है तो मीन्स दिस इज पॉजिटिव और निगेटिव, बताइए। अगर फॉर्च्यून आपको देखकर या आप पर स्माइल कर रही है, स्माइल ऑन योर एक्शन, तो वो आपके फेवर में है या आपके अगेंस्ट में है? फेवर में। फेवर में है। किसके फेवर में है यहाँ पर? मैकडोनल्ड की। मैकडॉनवर्ड के फेवर में, वही है। तो फॉर्च्यून ऑन हिज इविल कॉज स्माइलिंग, और फॉर्च्यून कैसी नजर आ रही थी? शोड लाइक अ रेबल्स वॉर। अगर वो किसी गलत आदमी के साथ खड़ी हुई है या गलत आदमी को स्माइल दे रही है, तो वो कैसी नजर आ रही थी? रेबल्स वॉर। वॉर का मीनिंग लिख लीजिए, प्रोस्टिट्यूट, मिस्ट्रेस। वो रेबल की मिस्ट्रेस की तरह नजर आ रही थी, प्रोस्टिट्यूट की तरह नजर आ रही थी, नॉट अ वाइफ। ठीक है। तो फॉर्च्यून का, ब्लीडिंग सोल्जर का ही कहना है, फॉर्च्यून का मैकडॉनवर्ड की ओर फेवर करना सीम्स की वो मैकडॉनवर्ड की वोर की तरह नजर आ रहे हैं। बट ऑल दीज थिंग, अब ये देखकर क्या लग रहा है कि मैकडॉनवर्ड इज वेरी पावरफुल, खुद वो विलेनस है, इतनी सारी आर्मीज उसको सप्लाई की गई हैं, साथ ही साथ फॉर्च्यून भी उसके फेवर में है, मतलब वो जीत ही रहा है चीजें। तो लेकिन ये सारी चीजें, ऑल इज टू वीक, सारी चीजें बहुत ही वीक थी, बहुत ही कमतर नजर आ रही थी, इंफीरियर नजर आ रही थी। फॉर, क्योंकि ब्रेव मैकबेथ, वेल ही डिजर्व्स दैट नेम। इसने बोला ब्रेव मैकबेथ, क्योंकि वहां फाइट में कौन शामिल था? ब्रेव मैकबेथ। रियली मैकबेथ डिजर्व्स दिस नेम, मैकबेथ डिजर्व्स ब्रेव, ब्रेव वर्ड मैकबेथ डिजर्व करता है। Disdaining fortune with his brandished steel, which smoked with bloody execution like a valor's minion, carved out his passage till he faced the slave, which never shook hands, nor bade farewell to him, till he unseamed him from the nape to the chops, and fixed his head upon our battlements. जो डिस्डेनिंग फॉर्च्यून, फॉर्च्यून को डिस्डेन करते हुए, फॉर्च्यून को हेट करते हुए, ये जो हमारा ब्रेव मैकबेथ था, अपनी ब्रांडेस्ट स्टील के साथ, वेविंग स्टील्स के साथ, वेविंग साल्ट के साथ, मतलब लहराती हुई तलवार के साथ। अब तलवार के ऊपर क्या है? विच स्मोक, तलवार के ऊपर से स्मोक बाहर निकल रहा है, क्यों? उस पर गर्म खून है, ब्लडी, ब्लडी एग्जीक्यूशन, क्योंकि अभी रिसेंटली ही एग्जीक्यूटेड, ही किल्ड मैनी 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 थाउजेंड्स ऑफ पीपल, सो देयर इज ब्लड एंड ब्लड शोइंग स्मोक। और जब वो आ रहा है अपनी ब्लड से भीगी हुई तलवार को लहराते हुए, लाइक अ वेलर्स मीनियन, वेलर मीनियन की तरह, वेलर के मीनियन की तरह, वेलर का मतलब होता है ब्रेवरी। तो यहाँ पर ब्रेवरी कह सकते हो, मीनिंग का मीनिंग होता है हस, फेवरेट, वेलर्स फेवरेट। वेलर को यहाँ पर आप गॉड ऑफ वॉर, गॉड ऑफ वॉर के फेवरेट पर्सन की तरह, कार्व्ड आउट हिज पैसेज, मेड हिज पैसेज, मैकबेथ जो है वो अपना रास्ता बनाता है, भीड़ में से अपना रास्ता बनाता है, तलवार को लहराते हुए आ रहा है, तलवार पर खून ही खून है, और वो अपना रास्ता बनाता है भीड़ के बीच में से, टिल ही फेस द स्लेव, और तब तक वो रास्ता बनाता रहता है जब तक उसका सामना स्लेव से नहीं हो जाता। स्लेव का मतलब रेबल, मैकडॉनवर्ड। विच नेवर सूट्स हैंड, और जैसे ही मैकबेथ फेस टू फेस होता है, उसके सामने जाकर खड़ा होता है, मैकबेथ ना तो उससे हाथ मिलाता है, ना ही उसको फेयरवेल कहता है, मतलब ही डिडंट कन्वर्स, या बोथ डिडंट कन्वर्स, दोनों एक दूसरे कोई कन्वर्सेशन नहीं करते। सिर्फ मैकबेथ अनसीम्ड हिम, उसको टीयर, टोर कर दिया उसने, काट दिया। कहाँ से? नेव से लेकर चॉप्स तक, नीचे जो नेवल है वहां से लेकर चॉप, यहां तक उसने तलवार से लेकर काट दिया। एंड फिक्स्ड हिज हैंड, और उसकी गर्दन को काट कर गर्दन को फिक्स कर दिया। आवर बैटलमेंट्स, हमारा जो बैटलमेंट्स है वहां पर, बैटलमेंट्स का मैंने लिखी है वॉल्स ऑफ द फोर्ट, हमारी जो किले की दीवारें हैं वहां पर उसने मैकडॉनवर्ड के फेस को टांग दिया जाकर। ठीक है।